تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے کہ وہ اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت کو قائم کریں گے. کل بھی کہتے ہیں کہ وہ عہد کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کے حامل ہیں, حامل قرآن ہیں. تو حامل قرآن کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ لیا ہے, کس چیز کا عہد لیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا. اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلوں پر 12 سردار تھے. کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد کیا تھی؟ کوئی جس نے پڑھ رکھا ہو وہ بتائے. جی 6 لاکھ ایک روایت کے اعتبار سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ جی 6 لاکھ یا 20 لاکھ. جی یہ 2 روایات خاص طور پر یہود کے مقدس دینی ادب سے ملتی ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, تقسیم کار کیسے ہوتی ہے, کاموں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. کام کیا تھا؟ بظاہر تو لگتا ہے پانی کی تقسیم, لیکن اصل میں جتنے نقیب بنائے گئے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب کے معاملات کی خبر رکھیں گے. نماز اور نیکی کے کام کروانا اور برائی سے روکنا, ان سب چیزوں کے بارے میں خبر رکھیں گے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا, کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک قبیلے میں کتنی بڑی تعداد تھی؟ لاکھوں افراد. اگر وہ 20 لاکھ تھے تو ہر قبیلے کے لاکھ سے تو اوپر ہی لوگ تھے نا. اگر وہ 6 لاکھ تھے تب بھی 50-50 ہزار لوگ تو ہوں گے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نقیب کسی کو سردار مقرر کرنا ہے تو 50,000 لوگ تو ہونے ہی چاہیے. تو 5 لوگوں کا سردار بن کے تو کوئی فائدہ نہیں. کوئی 50,000, کوئی لاکھ, 1.5 لاکھ لوگ تو ہونے چاہیے. قرآن ہمیں کتنی چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں کیسے نظام قائم کیا. قبائلی زندگی میں ایک قبیلے کے اوپر ایک سردار, یہ نہیں کیا کسی اور قبیلے کا سردار, وہ جس کے ساتھ ویسے ہی ذرا اختلافات چل رہے اس کا فرد اٹھا کے کسی دوسرے قبیلے کا سردار بنا دیں. حضرت عمر کی بات مجھے اس قدر حکمت والی لگتی ہے. حضرت عمر اپنے دور میں کہتے تھے کسی دیہاتی کو شہری لوگوں پر حکمران نہ بنانا, اسے نگرانی کا کام نہ دینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیہاتی لوگ اچھے نہیں ہوتے, لیکن ریلی اچھے مینیجرز کم ہوتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ بے جوڑ چیزوں کا ٹانکا لگائیں گے نا تو اس کا نتیجہ اچھا سامنے نہیں آئے گا اور نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ دیہاتی شہری لوگوں کی زندگی کو نہیں سمجھتا. اور شہری لوگ چونکہ زیادہ چیزوں سے قریب قریب بھی رہتے ہیں, ان کے مسائل مشکلات اور طرح کی ہوتی ہیں اور ان کے سوچنے کا انداز فرق ہو جاتا ہے. تو کوئی دیہاتی جب آتا ہے تو دیہاتی کی وجہ سے
सारे लोग बहुत मुश्किल में मुब्तला हो जाते हैं, तो देहाती लोगों पर और शहरी लोगों पर हों तो उसकी वजह से मामलात आसान हो जाते। अब आप देखें कि एक कौम है जो अल्लाह ताला ने जिसको समंदर से निकाला है, मिस्र से ये जा रहे हैं फलस्तीन की तरफ, और अब अल्लाह ताला ने इनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि 12 कबीलों को पानी भी चाहिए था, उनके अखलाक सीधे करने वाले लोग भी चाहिए थे। हर कबीले पर उन्हीं में से एक सरदार मुकर्रर कर लिया। बड़ी नेचुरल, बड़ी फितरी तकसीम है। बज़ाहिर तो लगता है ये हमारी, यानी कुरान से तो हम अक्सर लोग मुश्किल से इस बात से निकले हैं कि बरकत वाली किताब से जिंदगी गुजारने के उसूल भी सीखने चाहिए, लेकिन जिंदगी के उसूल सीखना चाहें तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात से आगे फिर भी नहीं जाना चाहते कि ठीक है इबादत कर लो, पता लग गया, ठीक है, लेकिन करना वही है जो अपनी मर्जी है। तो आप देखिए कुरान तो कैसी जिंदगी सिखाता है कि एक पूरी कौम है जिसको मुनज़्ज़म करना है। उस कौम में कौन मौजूद था, कौन लेके जा रहा था उन्हें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इतने कबीलों के सरदार थे जो इस सारे काम को मिलकर मुनज़्ज़म करते थे। 12 कबीले और 12 सरदार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बनी इसराइल से अल्लाह ताला ने अहद लिया था कि मैंने जो हिदायत दी हैं उनको मजबूती से थाम लो और उन्हें याद रखो। कितनी अहम बात है, कितनी अहम बात है, हिदायत नहीं भूलनी। लोग हिदायत को पढ़ते भी नहीं, भूलता तो तब है ना जब याद हो, तो याद ही नहीं रखते, पढ़ते ही नहीं, तो ना पढ़ेंगे ना याद रहेगा, तो जिंदगी बर्बाद ही रहेगी ना। अल्लाह ताला की किताब आज भी लोगों के पास मौजूद है। कितने लोग हैं आपके घर में जिन्होंने कुरान को मजबूती से थाम रखा? कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान के अहकामात को याद रखा है? हमारा फर्ज सबसे पहले अपने अहले खानदान, अपने घर वालों के लिए है ना। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया था, हमारे सामने रखा है ताकि हम सबक हासिल करें कि अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से थामना है और जो कुछ इसमें है इसे याद रखना है। और फिर ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिदायत दी जाती हैं उन हिदायत को मजबूती से थामना है और उन्हें याद रखना है इम्प्लीमेंट करने के लिए ना। बहुत सी चीजें थी जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते थे जो तौरात में नहीं थी। इम्प्लीमेंटेशन प्लान तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देते थे ना, जिस पर सब लोग अमल करते थे। किस तरह सबको एक ढप पर रखना है। अब देखें ये वो लोग हैं जिद करके बैठ गए, लन नस्बिरा अला ताम वाहिदिन, हम एक खाने पे हरगिज सब्र नहीं कर सकते। अगर 6 लाख लोग थे, ये 20 लाख लोग, अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनकी तादाद को, ये सिर्फ हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि अगर 6 लाख या 20 लाख लोग मुतालबात लेके, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएं या मुजाहरा कर दें, लन नस्बिरा अला ताम वाहिदिन, हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कंट्रोल करना था? 12 सरदारों ने ही कंट्रोल करना था ना। वहां कोई पुलिस थोड़ी बुलानी थी जिन्होंने आके मजमे को तितर बितर करना था, क्योंकि ये सारा मजमा तो उनके साथ ही जाना था, आगे जा रहे थे ना। और ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने बगैर मेहनत के बटेरों जैसे परिंदों का गोश्त खिलाया और मन जैसी स्वीट डिश खिलाई, छोटे छोटे धनिया के बीज के बराबर स्वीट डिश। सुबह उठते थे तो चुन लेते थे, कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना, फिट गए थे, यानी उन्हें इनामात को याद नहीं रखा ना, और पकड़ गए कि नहीं हम एक खाने पे तो सब्र नहीं कर सकते। तो इसलिए कंट्रोल जरूरी था ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और लोग भी हों, अपने अपने कबीले के लोगों को समझाएं और उनके बाकी मामलात की निगरानी करें। और आप जानते हैं कि उस वक्त नस्ले का पानी नहीं होता था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी रिवायत हमें मिलती है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन एक बात अपनी जगह पर है कि वो कोई ऐसा पत्थर तो नहीं था जो फिक्स था,
یا ایسا پتھر تھا یا جو ساتھ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ اچھا جب نہریں نکلتی ہوں گی یہ آگے چلے جاتے ہوں گے تو نہریں کدھر جاتی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لوگوں کی بہت قیاس آرائیاں ہیں, قیاس آرائیوں میں نہیں جانا چاہیے, لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ کھانا بھی انہیں ہر علاقے میں ملتا تھا, بادل بھی ہر علاقے میں پہنچتے تھے, اور پانی بھی ہر علاقے میں انہیں ملتا تھا. ہاں یہ پتا ہے ہمیں کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے, 12 سردار, 12 قبیلے, 12 چشمے. ٹھیک ہے, انتظامات ہیومن ریسورس اور پھر اسی طرح سے جو میٹیریل ریسورسز ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے 12 افراد ہیں. سوچیں 12 چشمے ہیں اور 20 لاکھ لوگ ہیں یا 6 لاکھ لوگ ہیں, اور 12 لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ آپ کس ترتیب کے ساتھ اپنے لیے سب چیزیں لوگ. تو خوراک حاصل کرنے کے لیے کوئی لنچ باکسز تو تھے نہیں کہ انہیں ملتے ہوں. اب یہ پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہوگا کہ انہیں ہر ٹائم پہ مل جاتا تھا, پانی بھی ملتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاشی ایکٹیویٹی سے آزاد کر کے سفر کرنے کا موقع دیا تھا. ایک ہی ڈیوٹی لگائی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی کتاب کو, اور اسے یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آج کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے. بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد دیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجوں گا, جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا. سورہ الاعراف کی آیات ہیں 156 اور 157, جس میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اوفی بعہدکم, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا اور بندوں سے کیا عہد لیا؟ بندوں سے اللہ تعالیٰ کا عہد تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کا عہد یہ ہے کہ خوش ہو کر انہیں جنت دے گا انشاءاللہ. تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو, میرے غیر سے نہیں, مجھ سے ڈرو. آپ کس کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. چھپکلی سے کون ڈرتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھ لیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ورسز چھپکلی, آپ کی سلیکشن کتنی گھٹیا ہے. کاکروچ سے کون کون ڈرتا ہے؟ یعنی یہ ڈر نکالیں دل سے اگر دل میں ہے. کاکروچز سے ڈرتے ہیں, چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں, تو آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں تو چھپکلی رہتی ہوگی, آپ چھپکلی سے سوچتے ہوں گے. چھپکلی کا ڈر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کیا چیز لاتا ہوگا؟ کتنی چھپکلی جیسی سوچیں. ریلی ایسا یہ سچ ہے کہ آپ جس سے خوف کھاتے ہو اس کا اثر رہتا ہے, وہ سوچوں میں رہتا ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے نا اس خوف کو دل سے نکالنا, خالص ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور انسان نقصان پہنچانے والی چیز کا خوف نہیں رکھتا. خوف تو ہو سکتا ہے, یہ وہ خوف ہے جو آپ کے اندر سائیکولوجیکل ڈیزیزز پیدا کرتا ہے. چھپکلی کا, کاکروچ کا خوف, کیونکہ یہ چیزیں کوئی آپ کو نقصان تھوڑی پہنچاتی ہیں. باقی لوگ جو نہیں ڈرتے انہیں چھپکلیاں کیا کر رہی ہیں, یا کاکروچ ان کا کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی آپ نے اپنی زندگی بگاڑی بھی ہے, سوچ کا زاویہ ٹیڑھا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے غیر سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. دیکھیں آپ ایک ایسے برتن میں جس کے اندر پہلے ہی کسی کا خوف ہے, اور وہ کسی کے خوف سے بھرا ہوا ہے, کسی انسان کے خوف سے. کل ہم لوگ کہیں جا رہے تھے کسی کی عیادت کرنے کے لیے, یہاں سے واپسی پہ تو کسی کی کال آ گئی کہ ہم نے کل آنا ہے لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے, اور خوف زدہ آواز اور برا حشر.
किस चीज से खौफ लगता है? खौफ ये आता है कोई इंसान हमारे बारे में जाने क्या फैसला कर दे। एक अल्लाह से डरना सीखें, इंसानों से डरा नहीं करते। आपका ताल्लुक आपके रब से है। अगर आप अपने रब के हक में खरे और खालिस हैं तो आप कभी किसी इंसान से नहीं डरेंगे। इंसानों का अदब जरूर करेंगे, एहतराम करना, अदब करना, ख्याल रखना, उनकी इज्जत करना, ये अपनी जगह पर है, लेकिन रोक किसी का नहीं खाएंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमताशिया। मैं ये बात काफी सोची, हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में सिखा देते हैं, बस हमें डराते हैं, छिपकली आ गई, ये चीज आ गई, हमें बचपन से ये चीजें डराती हैं। वो जब आपके बच्चे होंगे आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इंशाल्लाह कभी नहीं। ठीक है। हाँ, तो हमें अल्लाह को अभी आप देखें, आपने एक बात नोट की, माशाअल्लाह, कि मैंने उन्हें ऐसी बात कही जिसपे लोग बात अगली करना छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इंसान एक अल्लाह के लिए खालिस होता जाता है ना, उसे परवाह नहीं रहती कौन क्या सोच रहा है, मेरी बात का क्या असर होगा, उन चीजों से बेनियाज होकर तैयार हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा। तो इसलिए जो बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स को डरा रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि इनको इस तरह ना डराएं, इनको ये डराएं कि अल्लाह ताला है, उनको इस तरीके से डराना चाहिए। आप दूसरे लोग अल्लाह ताला ऊपर देख रहे हैं आपको, या आप मामा को तंग कर रहे हो तो आपको अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला नाराज होंगे, अगर मामा नाराज होंगे अल्लाह ताला नाराज होंगे। तो इस तरह नहीं डराते बच्चों को, चीजों से डराते हैं, जिन आ गया भूल आ गई, इस तरह चीजों से डराते। ठीक है। अंदर से डरते वइया फरहबून, और सिर्फ मुझी से तुम डरते रहो। सैयदना इब्ने अब्बास के इस बारे में ये कौल है कि मुझसे डरो कि मैं तुम्हें किसी किस्म के अजाबों में मुब्तला न कर दूं, जिस तरह के अजाबों में तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा को मुब्तला किया था, और मसक वगैरह के अजाब को तुम खूब जानते हो, यानी पहले लोगों को सुअर बनाया था, बंदर बनाया था। तो तुम बेखौफ ना हो जाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें मोहलत दे रहा है तो सदा मोहलत ही रहेगी, न जाओ उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी, डर उसकी देरगिरी से कि सख्त है इंतकाम उसका। तो अल्लाह ताला ने उनको वो असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया जो अहद को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, यानी उस एक से खौफ खाना। तो जो कोई उससे डरता है, जानते उसमें क्या चेंज आती है? वो सिर्फ अल्लाह की मानता है, उसकी इताअत करता है, जिससे अल्लाह ताला रोके उससे रुक जाता है। कितनी बड़ी चेंज है ना। एक अल्लाह ताला का खौफ इंसान को हर किसी के खौफ से बेनियाज कर देता। वो किसी ने कहा क्या डर है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। एक अल्लाह ताला का खौफ रखना इंसान को खालिस करता है, इंसान को मुती फरमान बनाता है, इंसान को अल्लाह ताला के रोके से रुकने के काबिल बनाता है। एक चीज जो यहां देखनी बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला के खौफ के क्या फवायद हैं। क्या खौफ का भी कोई फायदा होता है? तो आपको छिपकली के खौफ का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा तो हुआ होगा, क्योंकि इंसान तो अपनी जिंदगी में उस चीज को इख्तियार करते हैं जिसका कोई फायदा हो। तो जब किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है तो आप उसको बेवजह छिपकली से डरते चले जा रहे हैं। और क्लास में छोटे बच्चे होते हैं ना, एक कहता है कि मैं छिपकली से डरता हूं, दूसरा कहता है हाय शायद यही सबसे बड़ा काम था जिंदगी में, तो मुझे भी छिपकली से डरना चाहिए। और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं, तो एक तो जाने किस वजह से डरा होगा, बाकी उसके पीछे पीछे डर रहे। एक को नहीं पता अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का, बाकी लोग भी बेताल्लुक हो जाते हैं, इतना ज्यादा माहौल का असर होता है। तो अल्लाह ताला के खौफ की वजह से एक आइडियल पर्सनालिटी वजूद में आती है। अल्लाह ताला के खौफ की वजह से इंसान दूसरों के हुकूक अदा करने वाला बन जाता है, अपने मकसद जिंदगी को पा लेता है और अल्लाह ताला की नियाबत का हक अदा कर सकता है। अल्लाह ताला का डर इंसान को बहुत कुछ देता है। अल्लाह ताला के डर की एक सूरत है आखिरत की जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी। अल्लाह ताला के सामने हम अकाउंटेबल होंगे। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो कोई अल्लाह ताला के आगे खड़े होने से डर गया उसके लिए दो बाग हैं, यानी जिसको अकाउंटेबिलिटी का यकीन है
اس کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں. تو جوابدہی کے احساس سے انسان کے معاملات درست رہتے ہیں, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کون ہے جو چاہتا ہو میری نیکیوں میں اضافہ ہو؟ تو اللہ کا ڈر ضروری ہے. جو برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ کا ڈر ضروری ہے, لازم ہے. کیا آپ جانتے ہیں آپ پر فرض ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف واجب ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے, اس نے اپنی عبادت چھوڑی ہے. کیونکہ آپ کا دل خالی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, کوئی ڈر تو آپ کے دل میں رہے گا, اس کی جگہ کوئی نہ کوئی ڈر لے گا, اور کسی اور کا خوف آپ کو کبھی نفع نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات درست رکھتا ہے, اور انسان لوگوں کی بجائے ایک اللہ کی پرواہ کرنا سیکھ لیتا ہے. ہمیشہ لوگ اس نقطہ نظر سے اپنی زندگی ترتیب دیتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے سامنے امیج بلڈنگ کرتا ہے. جس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. پھر ویسے کام کرنا نہیں چاہتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا ڈر دل میں کیسے آتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے, استغفار کرتا رہتا ہے, استغفار بہت جلد انسان کو ایسے لیول پر لے آتی ہے جہاں انسان سوچنے لگتا ہے کیا کیا گناہ ہوئے, کون کون سی غلطیاں ہوئی, مجھے کیسے ان غلطیوں کو دور کرنا ہے. استغفار سے کس طرح سے خطاؤں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے انسان, اپنی خطاؤں کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتا ہے. جو اپنی غلطی کو نہیں سوچتا, غلطی کا احساس نہیں رکھتا, وہ کبھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا. ڈر کس بات کا ہے؟ حساب ہوگا نا. ڈر کس بات کا ہے؟ عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے, اس کے عذاب کی وجہ سے انسان کو ڈر لگتا ہے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ناراضگی کا ڈر بہت رہتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس نہ کرے تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے, دوریاں آ جاتی ہیں, اور پھر خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے باک ہو جاتا ہے گناہ کرنے میں, اور انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. وہ ظلم کرتا ہے, بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میرا رب نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے فلاں کا حق کیوں مارا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مخصوص حالات میں رکھ کر ریئلائز کرواتے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں تم سے, معافی مانگ لو, جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا. آپ دیکھیے مثال کے طور پر جیسے خواتین کے معاملات فرق ہیں اور مردوں کے معاملات فرق ہیں. جب کاروباری زندگی میں بزنس ڈیلنگز ہوتی ہے نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا یہ بالکل برحق ہے. مثال کے طور پر جیسے ہوٹلز میں جاتے ہیں تو کھانا جب کھا چکتے ہیں تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی مکھی ڈال کے کہتے ہیں اس میں مکھی نکل آئی. اب جب مکھی نکل آئی ہے تو ظاہر ہے کہ کھانے کی اماؤنٹ تو پے نہیں کریں گے, حق قسم کر لیا نا. تو مجھے یہ بتائیں اس وقت اللہ کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ کوئی تو ایک مکھی کی وجہ سے ایکسپلائٹ کر لیتا ہے, چھوٹا ہے نا ابھی. پھر جس نوعیت کا بزنس ہے نا, کسی نے برتنوں کا بزنس کیا, کسی نے کپڑے کا کیا, کسی نے کاغذ کا کیا, کسی نے پرنٹنگ کا کیا, کسی نے آئل کا بزنس کیا, کسی نے ٹرانسپورٹ کا بزنس کیا. کتنے لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے, کسی سے کوئی چیز لینی ہے, کسی سے کوئی چیز لینی ہے. کتنے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر لوگ پیمنٹ نہیں کرتے. پاکستان میں اتنی بے خوفی ہے, جہاں کہیں کو بزنس کرنے لگتا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی یہاں اکثر ہار جاتی ہیں, کیونکہ کتنی کمپنیاں جنہوں نے اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کر لیا,
क्योंकि हर कोई कहता है हमें उधार पे दिया जाए। उधार पे जब दिया जाता है बाद में उधार वापस करना अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला से डर नहीं लगता। कितना कितना माल अपने घुटने के नीचे दबा के रखते हैं, नहीं देना, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं उतना लोगों के माल को लेते जाते हैं। हर वक्त लोगों की नजर होती है किस तरह से ज्यादा माल आ जाए और कम से कम रुपया जाए। किसी के माल से बिजनेस करते हैं, फिर उसको उसका रुपया भी वापस नहीं करते, हालांकि उसके रुपए से बिजनेस भी हो चुका। हमारा दीन तो वो है जहां हमारे रसूल ने हमें फरमाया कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। यहां बिजनेस की ये टैक्टिक्स हैं, कभी वक्त पे नहीं देना, लोग भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, इतने दिन गुजार लो कि फिर वो मजबूर हो जाए। मजबूरियों का नफा है भाई, लोगों की मजबूरियां खरीदते हैं, खून पसीने की कमाई खरीदते हैं, इसलिए कि आप अल्लाह से बेखौफ हैं। और आप देखें कि जब कभी कोई चीज खरीदी जाती है, रेडी वाले से खवातीन की बातचीत खत्म ही नहीं होती, कम करो कम करो। जो आपकी सारी बचत है वो रेडी वाले के पास जाके ही होनी है। उस गरीब को इतना नफा होता, यानी कोई शॉप या मॉल ना बना लेता, उसकी तो इतनी औकात है वो रेडी लगाता है। मैंने कितने लोगों को रेडी लगाते देखा गुज़िश्ता 30 बरस से, एक रेडी एक ही जगह, कि उनको इतना मुनाफा नहीं होता, वो तो अपनी दाल रोटी से ही बाहर निकल नहीं पाते। और किसी खातून को डर नहीं लगता जब वो किसी रेडी वाली के पास खड़ी होती है कि अगर किसी ढाबे से किसी ने खाना खाया या अगर किसी ने किसी रेडी वाले से कुछ सब्जी परचेज की या फल लिया, उससे उसने कम जरूर करवाना है अपने आप को अक्लमंद साबित करने के लिए। डर नहीं लगता किसी के बच्चों की रोजी पे लात मारते हुए, खौफ नहीं आता। इस सोसाइटी से खौफ उठ गया क्योंकि किताब का इल्म उठा है। ऐसे ही हालात बनी इसराइल के थे, वो भी पहले अल्लाह ताला से बेखौफ हुए थे, पहले उन्होंने किताब छोड़ी थी। आज किताब किस किस के हाथ में, किस किस के सीने में। आप दूर ना जाइए, अपने घरों में देखिए, अपने नेबरहुड में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, कितने लोग हैं जो किताब के इल्म से लाबल्द हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप इस किताब को मजबूती से थाम लो और इसको याद रखो, इसको याद रखने में ही भलाई है। और अल्लाह ताला ने अपना खौफ दिलाया है, क्योंकि अल्लाह के खौफ से ही अमल सीधे होते हैं। फिर फरमाया व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून। और जो मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, ये उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके साथ कुफ्र करने वाले न बनो, और मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत न खरीदो, और सिर्फ मुझी से बस तुम डरते रहो। बनी इसराइल को कुरान मजीद पर ईमान लाने की दावत दी गई है। व आमीनू बिमा अंज़लतु, कितनी सादगी है, उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की है। तो मुझ पर ईमान रखते हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने नाजिल की है, इसको मान लो। तो ये किताब क्या है? ये कुरान मजीद हमारी जिंदगी का प्रोग्राम है। पहली किताबों के बाद तौरात, ज़बूर और इंजील के बाद अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया है। इसी पर ईमान लाने का मुतालबा है कि इस पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम दलील दी है, ये उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात और इंजील की। तो कुरान मजीद पिछली किताबों के लिए सच्चाई का गवाह बनकर नाजिल हुआ है। कुरान मजीद तौरात की तस्दीक करता है, इंजील की तस्दीक करता है, वो सारी किताबें सहीफे जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर नाजिल किए सब की तस्दीक करता है। उसूली तौर पर उनकी तौहीद की तालीमात की तस्दीक करता है। तो कुरान मजीद सिर्फ उन चीजों की तरदीद करता है
جو غلط طریقے سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی. جب قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو تم قرآن مجید پر ایمان لے آؤ. یہ ہے اس بات کے کہنے کا مقصد، کیونکہ تم اہل کتاب ہو، تم اہل علم ہو. تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا تمہیں پر لوٹے گا. تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے. تو کتاب پر ایمان لانے کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے، یہ جاننا کتنا ضروری ہے. کتاب پر ایمان کیسے لائیں؟ کتاب پر ایمان لانے کے لیے وہ آپ کی امی ہوں، آپ کے ابا ہوں، آپ کے شوہر ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، نیبرز ہوں، یا ناواقف دنیا بھر کے انسان، جو اس کتاب پر ایمان لانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کتاب کا علم حاصل کرنا ناگزیر. اور علم سے مراد ناظرہ پڑھنا نہیں ہے. ناظرہ پڑھنا صرف اس کے الفاظ کی ادائیگی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اس کتاب کا علم اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں ہے تو اس کتاب پر ان کا ایمان مشکوک ہے نا. ایمان کہاں ہے؟ کتنی مشکل ہے یہ بات کہنی کہ ان کا اس کتاب پر پھر ایمان کیسے ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل کیا جائے. کوئی عمل کیسے کرے گا جب علم ہی نہیں ہے؟ اور تیسرا کام کیا ہے؟ اس کے پیغام کو آگے پھیلایا جائے. تو ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں ہیں نا، ایمان ہے، علم ہے، عمل صالح ہے، اور اس کا پیغام پہنچانا، اس کی دعوت دینا. ایمان لانا علم کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر علم کے بغیر عمل ممکن نہیں. علم اور عمل کے ساتھ ہی دعوت دی جا سکتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. علامہ بغوی کہتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی. یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی کا بھی کفر کرتا ہے، اور نبی سے کفر کرنے والا قرآن مجید کا بھی کفر کرتا. کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن کا علم نہ رکھتا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لے؟ اس کا دعویٰ سچا کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کی تعلیم ہر فرد کے لیے لازم ہے. پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اور دوسرے نہیں جانتے، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری زیادہ بڑی ہے. مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے دعوت دی گئی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا سب سے پہلے تم کافر نہ بنو، ورنہ بعد میں آنے والوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو. تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کرنا ہے. رب العزت نے فرمایا قُلْ متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 77 ہے. دنیا کی متاع سے مراد دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو دنیا کا رزق کم ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھ لیا تو بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کی تعلیم اس لیے نہیں دلوانا چاہتے کہ اگر دین کی تعلیم سیکھ لی تو اس کی وجہ سے لوگ بیکورڈ کہیں گے، لوگ اپنی سوسائٹی میں ایکسپٹ نہیں کریں گے. سوچئے اگر اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان نہ لائے، رسول پر ایمان نہ لائے تو آخرت کی ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں، اور دنیا کی نعمتوں کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کر لے. بندہ سوچ نہیں سکتا کب انسان کہاں سے پکڑا جاتا ہے. کبھی کوئی اولاد سے پکڑا جاتا ہے، کوئی اولادوں کی اولاد سے پکڑا جاتا ہے، بچتا تو دنیا میں بھی نہیں.
पकड़ा तो इंसान जाता है, और जिसकी रस्सी ज्यादा दराज हो गई वो ज्यादा बुरे तरीके से पकड़ा जाएगा। या अल्लाह हम सबको सच्चा फहम नसीब कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस इल्म को जिससे अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल हुई है इसलिए सीखे कि इससे दुनिया कमाए, जो शख्स इस इल्म को इसलिए सीखे कि इससे दुनिया कमाए, तो वो कयामत के रोज जन्नत की खुशबू तक न पाएगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है 3664 नंबर पर। कितने ही लोग हैं दुनिया में जो दीन का इल्म इसलिए सीखते हैं कि हमारे घर की दाल रोटी चलती रहे, अपने बच्चों को इसलिए मदारिस में दाखिल करवाते हैं कि चलो वो और कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह से उनका घर चलता रहे। जो रिस्क के उसूल के लिए दीन का इल्म हासिल करना चाहे और दीन के इल्म से कमाना चाहे, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने जो बात कही कितनी सच्ची है। वइया फत्तकून, और सिर्फ मुझी से बस तुम डरते रहो। इब्ने अबी हातिम ने तलक बिन हबीब से रिवायत किया है फत्तकून के हवाले से कि तकवा यह कि तुम अला वजहिल बसीरत अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद से उसकी इताअत बजा लाओ और अल्लाह ताला के डर की वजह से उसकी नाफरमानी तर्क कर दो। तो अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है कि मेरे सिवा किसी से न डरो, क्योंकि जब तुम अल्लाह ताला के मां सिवा किसी और से डरोगे तो तुमसे जो चीज गुम हो जाएगी वो तकवा है। थोड़ी सी कीमत के मुकाबले में आयात इलाही पर ईमान को मुकद्दम रखने की मूजिब होगी। जैसे जब तुम आयात इलाही के बदले थोड़ी सी कीमत को पसंद कर लेते हो तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि तुम्हारे दिलों से तकवा कूच कर गया। ये तफसीर सादी की रिवायत। हमारी सोसाइटी में टीवी चैनल्स के जरिए और सोशल मीडिया के थ्रू और इसी तरह से यानी मुख्तलिफ मकामात पर लोग बैठ जाते हैं, कोई इस्तिखारा करके देता है फिर पैसे लेता है, कोई तावीज लिख के देता है फिर पैसे लेता है, कोई इसी तरह से लोगों को ये झांसा देता है कि मैं तुम्हारी गुमी हुई चीज वापस दिला दूंगा। और अल्लाह की आयात के इल्म ये सौदा करना कि इन आयात के बदले में तुम पैसे दे दो, आयात का नक्श हम तुम्हें बता देते हैं, फलां चीज बता देते हैं। तो अब देखिए तावीज का जो सिलसिला है वो कितने बड़े पैमाने पे फैलाया गया। अल्लाह की आयत का सौदा करना नहीं है। कितने लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुरान पढ़ाने वाला है वो भी मेहनत करता है, जो दीन की तालीम देने वाला है वो भी मेहनत करता है। वो यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, दीन पढ़ाए तो उसको सैलरी मिलती है, लेकिन जिस वक्त वो लोगों के घरों में जाके या किसी और जगह पे जाके एजुकेट कर रहा हो तो जाहिर है कि वो लोगों से कोई माल नहीं ले सकता। तो ऐसे में वो क्या करे? क्या वो लोगों से मुतालबा करेगा? मुतालबा करना तो जन्नत से दूर होना है, उस इल्म की रूह ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला से उम्मीद कहाँ है? क्या वो रब जो रिस्क का मालिक है वो आप तक रिस्क नहीं पहुंचाएगा? जो रब मक्खी के पेट से आपके लिए शहद निकालता है वो आपको जिंदगी के अंधेरों से नहीं निकालेगा। जो रब हर सुबह अंधेरे की गोद से रोशनी फोड़ निकालता है, हर सुबह आपको मैसेज देता है कि बुरे हालात से अच्छे हालात तक ले जाऊंगा, तो उसके लिए एक कुरानी रास्ता रह गया है जिसको रिस्क के उसूल का जरिया बनाना, जिसके जरिए से रिस्क कमाना है। इसीलिए तो इस सोसाइटी के लोग कुरान से भाग गए, क्योंकि बहरहाल ऐसा नमूना लोगों के सामने रखा गया जिसकी वजह से लोग कुरान के करीब नहीं आए। आज अब कारी हजरात को देखिए, माजरत के साथ मैं किसी कुरान पढ़ाने वाले के बारे में बुरे लफ्ज नहीं कहना चाहती, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं रवैये की बात कर रही हूं
कितनी बड़ी तादाद है जो ये कहती कारी साहब आते हैं हाथ लगाने। 7 साल हो गए बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ते हुए, 7 साल से उनकी रोजी लगी हुई है। आते हैं 2 लफ्ज बताते हैं भाग जाते, अगला घर, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला। तो बच्चे की क्या तरबियत करेंगे? वो बच्चे को रब से कब करीब करेंगे? कितनी ज्यादा जरूरत है नाज़रा कुरान सेंटर्स बनाने की। लोगों को खुद नाज़रा कुरान पढ़ाइए, खुद पढ़ाएं ताकि सोसाइटी एजुकेट हो। और जब नाज़रा कुरान पढ़ाएं तो कितना आसान हो जाएगा उनको तर्जुमा पढ़ाना और उनको दीन से करीब करना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे। यहाँ एक सवाल का जायजा लेना जरूरी है कि यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार क्यों किया, जबकि उनकी किताबों में मौजूद था, जबकि वो पहचानते भी थे। जैसे कुरान हकीम में आता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो इनको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्लैरिटी से उन्हें बताया गया था। और आपको वो वाकया याद होगा जब हजरत सलमान फारसी को एक राहब ने निशानियां बताई थी कि वो नबी सदके का माल नहीं खाएगा लेकिन तोहफा ले लेगा और उसके कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। तो उन्होंने तीनों निशानियां पूरी पाई। पहले वो खजूरें लेकर आए और कहा कि ये सदके की खजूरें। देखा कि रसूलुल्लाह ने नहीं खाई तो कहने लगे एक निशानी तो पूरी हो गई। फिर वो दूसरे दिन खजूरें लेकर आए और कहा ये आपके लिए तोहफा है, आपने खुद भी खाई, सहाबे कराम को भी दी। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और आपकी चादर थोड़ा पीछे थी, तो वो पंजों के बल खड़े होकर उचक उचक के देख रहे थे। तो आपने अपनी चादर थोड़ा सा और पीछे कर दी तो उन्होंने मोहरे नबुव्वत देख ली और ईमान लिया। तो वो इस तरह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे किताब की निशानियों की वजह से, पहली किताबों की निशानियों की वजह से, फिर आपको क्यों नहीं मानते थे? एक बात जो बड़ी गहरी समझ रखने वालों को पता चलती है कि दीन वही होता है, लेकिन दीन कबूल करने वाले उसका मिजाज बदल देते हैं, अपने मिजाज में दीन को रंग लेते हैं। तो यहूद आबाओ अजदाद से मोहब्बत रखने वाली कौम थी, रिवायतों में रहते थे, तो उन्होंने अपने दीन को आबाओ अजदाद का दीन बना दिया था, रवाजों का दीन बना लिया था। इस वजह से उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पसंद नहीं आई, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बन गए। यहूद ने दुनियावी मफाद और मसलहतों की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि अरब के मजहबी ढांचे में उन्हें सरदारी भी मिल गई थी। अगर वो आपको मान लेते तो सरदारी और सरदारी से मिलने वाले जो फवायद थे वो खत्म हो जाते। कितने ही लोग हैं जो आज भी दीन पर सरदारी को फौकियत देते हैं और सरदारी की वजह से कितने दीन की बातों को तर्क कर देते हैं। लोग जिस वक्त दीन सिखाते हैं लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, फिर लोग असल को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर आज के दौर में मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर उन्हें कुरान पढ़ाने का मौका मिले तो वो फौरन बाजी बन जाती है। जगह जगह पे ऐसी बाजियां होती हैं। वो बाजी की क्लास है, बाजी की क्लास में जो लोग आ रहे हैं 20 साल से आ रहे हैं, 20 सालों में उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो बाजी के पास ही रहते हैं। अच्छी सोशलाइजेशन है, सोशलाइज करते हैं लोग, खाते पीते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, कुछ अल्लाह की बात भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जहन वहीं का वहीं रह जाता है। अच्छा, ये बाजी की क्लास ऐसी होती है जैसे बाजियों की कमेटियां होती हैं। वो बाजियां जो है वो कमेटियां डालती हैं ना, हर महीने कमेटी निकलती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं 2 महीने में एक दफा। तो ये जो बाजी की क्लास है ना, ये कभी हफ्ते में एक दफा, कभी 4 दिन, कभी 2 दिन, यानी ये सिलसिला भी मुस्तकिल जारी रहता है। अच्छा, वो उन लोगों को उनके दिमागों पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वो इंटेलिजेंट लोग हों, उन्हें कभी दीन में आगे नहीं बढ़ने देते। तो बाजियां आगे खड़ी हैं और बाजियों के पीछे कुछ लोग खड़े हैं। उन लोगों को उन्होंने कभी इस्लाम की खिदमत का मौका देना ही नहीं।
مجھے یہ بتائیے یہ کلاسز باجی کی کلاسز ہونی چاہیے یا قرآن کلاسز؟ قرآن کلاس. تو قرآن پیچھے رہ جاتا ہے, ایسے تبدیلی آ جاتی, کیونکہ لوگوں کو جب عزت اور احترام ملتا ہے نا تو لوگ پھر رب کو بھول جاتے ہیں, رب کی بات کرتے ہیں اور رب ہی کو بھول جاتے ہیں, پھر وہ اپنی ذات کو آگے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ فورمز بنائے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو قرآن کلاس ہے یہ کسی باجی کی کلاس نہیں ہے, یہ نور انٹرنیشنل کا ایک پروگرام ہے. آپ کا پروڈکٹیو مسلمہ کا کورس ہے, ڈپلوما کورس ہے, آپ کا مصباح القرآن کا کورس ہے جس میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو باجیزم ہے وہ پیچھے رہ گیا نا. تو آپ کے سامنے کیا چیز آ گئی؟ قرآن. وہ مصباح القرآن ہو, روح القرآن ہو, وہ کوئی اور تعلیم القرآن ہو, قرآن آگے ہے نا. تو جب کورس کا نام ہوتا ہے نا تو کورس کا نام آگے کرنا چاہیے, قرآن کو پیچھے کبھی نہیں کرنا چاہیے. دین سکھانے والوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. جس دور میں لوگ دین سکھانا شروع ہوتے ہیں وہیں سے لوگ اپنا کوئی نہ کوئی ڈیزائن نیا نکال لیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر وہ سچی دعوت گم ہونی شروع ہو جاتی. تو اپنی ذات کے گرد لوگوں کو نہ گھمائیں, اللہ کے گرد گھمائیں. آج میں جب سے کلاس شروع ہوئی ایک بات آپ سے کر رہی ہوں, کسی کا خوف نہیں کھانا, ایک اللہ کا خوف کھائیں. اللہ سے روب کھائیں, بندوں سے روب نہ کھائیں. ایک اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے, ایک اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے, اس سے امید باندھنی ہے. ہم جب یہاں مل بیٹھتے ہیں تو کس کے ساتھ تعلق بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب باجی کی کلاس ہوتی ہے نا تو باجی جان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. میں اس تعلق کے خلاف نہیں ہوں, استاد کے ساتھ محبت اور عزت کا تعلق اپنی جگہ پر ہے, وہ تعلق ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی تو جائزہ لینا چاہیے باجی جان کو کہ اس نے اس اللہ کے پیارے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا جوڑا ہے اور اپنے ساتھ کتنا جوڑا ہے. تو یہ یہودیوں کی بات ہم پڑھ رہے تھے کہ بزرگوں کی سعادت کی گدیوں پر بیٹھ کر انہیں عوام کی محبت اور توجہ ملی ہوئی تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے نبی کو مان لیا تو ہماری مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی. تو آج بھی آپ دیکھیں ذہنیت ویسی ہے, اپنی اپنی کلاس کی بڑائی ہے, اپنی اپنی ذات کی بڑائی ہے. قرآن کے نام پر جو عزت ملتی ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ اب تو اللہ کی عزت کا خیال کر لیں, اب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیں. تو مذہب کے نام پر کل بھی ملتے تھے, آج بھی لوگوں کو طرح طرح کے نذرانے ملتے ہیں. مال کی ہوس حق سے دور کر دیتی ہے. تو جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے میں مشکلات آتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مشکلات ہیں؟ خود ساختہ عزت کی مسندوں سے خود کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا وہ عزت بھی خود ہی بنائی ہوئی ہے, اس عزت کی مسند سے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کا ڈھانچہ بدلنا نہیں چاہتے, اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے. اسی وجہ سے حق کی دعوت پر لبیک کہنا دنیا میں مذہبی مقام بنانے والوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں جو لوگ مذہب کو لے کر چلنے والے ہیں وہی سچی دعوت پر لبیک نہیں کہتے, کیونکہ اپنی ذات کی عزت انہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے. پھر سچائی کی دعوت قبول کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو.
دیکھیے دو ٹرمینالوجیز ہیں، حق اور باطل. حق کا مطلب ہے سچائی، اصل حقیقت. اللہ کی ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سارا نظام حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور تمام انبیاء حق ہیں، اور قیامت حق ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے. یہ حق ہے نا. آپ کے پاس جو کتاب ہے جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ حق ہے، سچائی پر مبنی ہے. تو آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں باطل ہے. باطل کیا ہے؟ جو حق کی مخالفت کرے، جو سچائی کو نہ مانے. سچائی کی مخالفت جس بھی طریقے سے کی جائے ہر طریقہ باطل، ہر طریقہ باطل. اللہ پاک نے فرمایا تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. یہود کی ایک بری عادت تھی، جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے، حق چھپا لیتے تھے، باطل کو ظاہر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی سے روکتے ہوئے یہ حکم دیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ ہی حق کو چھپاؤ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق چھپانے کی نہیں، پھیلانے کی چیز ہے. آپ میں سے کون قرآن کو پھیلانا چاہتا ہے؟ پھر جب آپ قرآن کو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ سورج کو دیکھتے ہیں، وہ روشنی کو پھیلاتا ہے. تو سورج نکل آتا ہے کہاں سے؟ اندھیروں سے نکل آتا ہے نا. جب سورج آتا ہے تو تب روشنی ہوتی ہے. اندھیرے سورج میں نہیں ہے، سورج تو روشن ہے. لیکن جس کے پاس روشنی ہے، جو روشنی کا امین ہے، اس کو چاہیے کہ اس روشنی کو پھیلائے، اس کا اظہار کرے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے اظہار کیسے کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. پہنچانے کا ایک انداز ہے، اور اب تو پہنچانے کے ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہنچانے کے بہت سے طریقے آ گئے. ان طریقوں میں آپ بھی اپنا شیئر ڈال سکتے ہیں. قرآن کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ جیسے بے حیائی پھیلتی ہے نا، پوری دنیا تک ایک میسج جاتا ہے. تو اب اس علم کا میسج بھی ہر جگہ پہ پہنچتا ہے. آپ بھی اس مہم میں شامل ہو سکتے ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو جاری ہے. آپ بھی کسی کو ٹیگ کر سکتے ہیں، کسی تک اس کا لنک بھیج سکتے ہیں، کسی سے شیئر کر سکتے ہیں. کتنا آسان سلسلہ ہے، مشکل تو نہیں ہے، ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہے، ذمہ داری لینے کی بات ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پڑھانے کے بھی کتنے انداز ہیں. آپ چاہیں تو سامنے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا لیں، اور چاہیں تو آن لائن پڑھا لیں. آن لائن بھی یہ سلسلے جاری ہیں، یا آن لائن پڑھانے والوں کی مدد کر دیں. اظہار جب ہوگا تو اظہار ٹمٹماتا اظہار. آپ دیکھیں ایک چراغ ہے، تو اس چراغ کی آپ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا نا، کبھی کبھی یعنی ہم واقعات میں بھی سنتے ہیں کہ چراغ جب جلتے تھے تو اس کی بتی ہوتی تھی، تو بتی کو تیل میں رکھا جاتا تھا، تو کبھی کبھی چوہا بھی بتی لے کے بھاگ جاتا تھا، تو جدھر وہ جاتا تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ بجھانے کا حکم دیا. اب آپ دیکھیں گے جس وقت وہ چراغ میں سے تیل بجھ جائے، بڑا سارا چراغ اور تیل ہے نہیں، تو بتی کیسے جلے گی؟ روشنی کیسے ہوگی؟ اظہار کیسے ہوگا؟ آپ سوچیں ایسا طیارہ جس میں مسافر ہی نہیں ہے، وہ کہے کو پرواز کرے گا؟ اس کی فلائٹ تو پوسٹ پون ہو جائے گی نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیل بہت تھوڑا رہ گیا نا، اور بتی جو ہے وہ بار بار ہوا کے لگنے کی وجہ سے ٹمٹماتی ہے، تو کوئی کوشش نہیں کرتا تیل ڈال لیں تیل ڈال لیں. اور آپ قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں سورہ نور کے حوالے سے اس تیل سے مراد قرآن کا علم ہے. آپ سوچیں گاڑی میں آپ پیٹرول ڈلوائیں تو جب ختم ہو جائے تو آپ اور ڈلوا لیتے ہیں. قرآن کا علم حاصل کرنے والے کبھی دوبارہ ٹینک فل ہی نہیں کراتے، استعمال کیا اور بس ختم. اب کہتے ہیں بس یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تیل ہے یا نہیں ہے، گاڑی کو چلنا ہے، گاڑی نہیں ہے، تیل ڈلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا، ایک بار علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا. اس علم کو پختہ کرنے کے لیے علمی مجالس میں جانا، سیکھنا اور پختہ کرنا
यही अमल के लिए और इस इल्म को नशर करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। तो इल्मी पुख्तगी के लिए सदा कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो इल्मी पुख्तगी के लिए जब आप अकेले बैठ के कोशिश करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, उसके बाद खत्म, फिर सब कुछ छूट जाता है, फिर शुरू करते हैं, फिर छूट जाता है। इल्म के साथ मोहब्बत इल्म की मजालिस में बैठने से मिलती है। इल्म को तवज्जो देंगे तो इल्म आपको तवज्जो देगा, क्योंकि किताब बेहतरीन साथी है। आप बेतवज्जही से इल्म की बातों को सुनेंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे, तो इल्म भी आपको इग्नोर कर देगा, वो रोशनी नहीं बनेगा। तो आपके पास रोशनी होगी तो फैलाएंगे ना। तो हक से मुराद अल्लाह ताला की किताब है, हर सच्ची बात है। जो भी अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो हक हैं, और बातिल से मुराद हर वो चीज है जो अल्लाह ताला के निजाम के खिलाफ है, जिसकी बुनियाद अल्लाह के हुक्म पर नहीं है। आप जरा सोचें आपकी जिंदगी भर की, और अब खास तौर पे जब से आपके हाथ में मोबाइल आया, सोचें आप क्या क्या फैलाते हैं। एक पोस्ट आई है गरम गरम, आपने फौरन फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने कहा ये फौरी तौर पर शेयर कर लें, आपने उठाया सारे ग्रुपों में लगा दी। अगली पोस्ट आई, आपने सब लगा दी, फिर आई, फिर लगा दी। पता भी नहीं करते किसने क्या लगाया। कहीं कोई ग्रुप बन जाए, शामत आ जाते, क्योंकि सारे ही टीचर हैं, कोई स्टूडेंट है ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, सब लगाते हैं। तो जब सारे ही पोस्टें लगाने वाले हों, तो इसका मतलब यह है कि सारे ही फूंके मार रहे हैं। किसी की जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। सबसे पहले आप खुद एक्सेप्ट करेंगे, खुद अपने आप को दुरुस्त करेंगे, फिर दूसरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 30 है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु व अन्नमा यदऊना मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। ये इसलिए है कि यकीनन वही अल्लाह ताला ही हक है, और यकीनन उसके सिवा जिनको वो पुकारते हैं वही बातिल है, और यकीनन अल्लाह ताला ही बेहद बुलंद, बेहद बड़ा है। तो हक को बातिल से मिलाना कई तरह से होता है, यानी गलत काम करना और उसे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म जाहिर करना एक सूरत है। हक को बातिल से मिलाने के लिए झूठी तावीलें दी जाती हैं, इसीलिए फरमाया सच को झूठ से ना मिलाओ। कतादा ने कहा इसके मानी ये है कि यहूदियत और ईसाइयत को इस्लाम के साथ न मिलाओ। आज ये सिलसिला बड़े पैमाने पे जारी है। लोग दीन में उलमा की पैरवी करते हैं। अहले किताब से तवक्को थी कि वो इल्म को वाज़ेह करके बताएं, ताकि लोगों के लिए सीधा रास्ता और मुजरिमों का रास्ता वाज़ेह हो जाए, लेकिन उन्होंने हक को छुपाया और हक को बातिल से गड़बड़ कर दिया। यहूदी हक को छुपाकर बातिल का गलबा देखना चाहते थे। हक इस्लाम है और यहूदियत और ईसाइयत बातिल है। यहूदी जब हक को बातिल से मिलाते थे तो लोग मुतासिर होते थे। यहूदियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में जब कोई पूछता था तो यहूद मौका से फायदा उठाते हुए दिलों में वसवसे डालते थे, आप पर कोई इल्जाम लगा देते थे ताकि हक मुश्तबे हो जाए। झूठा प्रोपेगेंडा किसी भी दौर में हो वो बातिल है। प्रोपेगेंडा हथियार है बातिल का। प्रोपेगेंडा हर दौर में जारी रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं था। काहिन है, साहिर है, जादूगर, शायर है और दीवाना है। कितना प्रोपेगेंडा होता था कि जब से तुमने दावत दी है घर घर में इख्तिलाफात पैदा हो गए। शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, माँ बाप औलाद से और रिश्तेदार से कट गए हैं। यानी गोया इस्लाम को ये साबित किया कि इस्लाम आया है जिसकी वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है जिसकी वजह से रिश्तेदारियां मुतासिर हुई हैं। हालांकि रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए जो कोशिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वो सबसे बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। फतक्तुमुल हक़्क़, और ना ही हक को छुपाओ। हक को छुपाने से मुराद ये कि हक बात पता हो लेकिन दूसरे को न बताई जाए।
जो लोग दीन की दावत लेकर उठे उनके बारे में कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाए, तरह तरह के उलझन में डाले जाने वाले सवालात किए जाएं ताकि लोग खुद भी उलझें, दूसरों को भी उलझाएं। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि आप अल्लाह ताला के ताल्लुक की पीक की बहुत बड़ी बात एक महफिल में सुनते हैं, अचानक कोई उठ के कहता है पहले ये बताएं नमाज में रफ़ा यदैन होगा, औरत की नमाज और मर्द की नमाज में क्या फर्क है। ये शोशे हैं ताकि लोगों का जहन इधर उधर हो जाए, वो कुछ और सोचने लग जाएं। शोशों की भी बहुत किस्में होती हैं। मौके के मुताबिक बुरा जहन रखने वाले, बातिल जहन रखने वाले अपना काम करते रहते हैं। तो यहूद के हक को छुपाने के खास तरीके थे। नंबर 1, अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाते थे, फिर रसूलुल्लाह के बारे में बशारतों को छुपाते थे। वो अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, यानी पहली किताबों के जरिए अल्लाह ताला के अहकामात को जानते हो। हक अजीम है, जब हक छुपता है लोग हिदायत से महरूम हो जाते हैं और गुमराही के नतीजे में जहन्नुम तक जा पहुंचते हैं। तो जो लोग हक और बातिल को मिलाते हैं वो सारी इंसानियत के मुजरिम हैं, क्योंकि वो इंसानों को जहन्नुम में भेजना चाहते हैं, हक को छोड़कर बातिल को रवाज देना चाहते हैं। तो जो शख्स हक छुपाता है वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वालों में से होता है। आज के दौर में हक को बातिल के साथ कैसे मिलाया जाता है? बातिल के कई उसूलों को लोग इस्लामी उसूल समझने लग जाते हैं, लोग समझाते हैं और बाकी लोग समझने लग जाते हैं, उन्हें राइज किया जाता है। कारोबार के सूदी तरीके को इस्लामी कहना, पार्लियामेंट को शूरा समझना, गैर इस्लामी अदलिया को इस्लामी अदलिया समझना, गैर इस्लामी कवानीन को इस्लामी कवानीन की तरह कबूल करना, ये सब ऐसे तरीके हैं जो हक छुपाने के हैं आज, और हक को बातिल के साथ मिलाने के हैं। आज हक को कैसे छुपाया जा रहा है? क्या कुरान को नई नस्लों से छुपा नहीं लिया गया? उन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कहां कुरान की तालीम दी जा रही है? अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाया जा रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये उस दौर की बात थी, आज इस पर अमल नहीं किया जा सकता। असल किताब के मुकाबले में झूठे अहकामात को घड़कर धोखा दिया जा रहा है, जैसे फुरकानुल हक के जरिए अहकामात को बिगाड़ा जा रहा है। फुरकानुल हक एक किताब है जिसमें कुरानी आयात को बदलने की जसारत की गई है। तो इस्लाम के अहकामात के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे और शुबहात और एतराजात से हक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला ने आपको अपनी सच्ची किताब कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए यहाँ ला बिठाया है। अल्लाह ताला ने जब आपको मौका दिया है, जब आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपने हक को छुपाना नहीं है, आपने हक को पहुंचाना है। इंशाअल्लाह आपने किताब की तालीम को आम करना है, आपने कुरान को हर घर तक पहुंचाना है, हर दिल तक पहुंचाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बनी इस्राइल को दिए जाने वाले अहकामात हैं जिनसे ये पता चलता है कि नमाज और ज़कात का हुक्म इससे पहले भी मौजूद था, और अब ये हुक्म दिया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मिलकर आप भी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, यानी अल्लाह ताला के आगे झुक जाओ। झुकना जरूरी है, झुकना ही इस्लाम है, झुकना ही ईमान है। वरकऊ मअर्राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो ये अमली तौर पर अगर हम हालत रुकू को देखें तो अपने आप को पूरे वजूद के साथ झुका देना,
तो पूरे वजूद के साथ झुका देने वाला ही हकीकी नमाज अदा करता है, ज़कात अदा करता है। तो जो इस अंदाज में झुक जाता है उससे तवक्को की जाती है कि वो जिंदगी के हर मामले में अपने रब के आगे झुक जाएगा। डिटेल से देखते हैं, वो अक़ीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी नमाज के अरकान, आदाब, उसकी शराइत का लिहाज रखो, और बातनी तौर पर भी नमाज कायम करो, यानी दिल के झुकाव के साथ, खुशू खुजू के साथ। इसलिए कि नमाज ऐसा अमल है जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। जो यादों में बस जाए, जो यादों में रहे, उससे ताल्लुक, उससे राब्ता रहता है। तो नमाज ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला से इंसान का दिल जुड़ता है, उससे ताल्लुक कायम होता है और उसकी मदद भी नसीब होती है। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो नमाज के जरिए एक ईमान लाने वाले का ताल्लुक जहानों के बादशाह से जुड़ जाता। नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है और नमाज कायम करने वाले मुसलमानों के दरमियान बाहमी मोहब्बत भी पैदा होती है। 5 औकात में जिन लोगों की आपस में मुलाकात होती है, उनकी खुशियाँ, उनके गम, उनके दीगर मामलात एक दूसरे को पता चलते हैं तो लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कितने ही लोग हैं जिनके मामलात एक जैसे हैं, जिनकी मसरूफियात एक जैसी हैं। जैसे लोग सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं तो उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगरचे वो थोड़ा सा वक्त होता है, लेकिन हर रोज एक दफा मिलने वालों के ताल्लुकात भी कितने उम्दा हो जाते हैं। और जो 5 दफा आपस में मुलाकात करें और वो भी बेगर्ज बेलौस होके, तो उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। फिर नमाज की वजह से सबका मकसद एक होता है। मुश्तरका मकसद की वजह से लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मकसद की यगानगत बाहमी ताल्लुकात की मजबूती का सबब बनती है। वआतु ज़कात, और ज़कात अदा करो, यानी ज़कात उस तरह से दो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत ज़कात अदा करती है। यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा करनी सिखाई। ज़कात क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा ऐसा फरीज़ा है जिसको हर साहिब इस्तिताअत एक साल में एक मरतबा मुकर्रर शरह के साथ अदा करता है। वर्कऊ मार्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अजीब सी बात है, मुसलमानों के यहाँ रुकू है, यहूद की सलात में रुकू नहीं था, तो यहाँ खास तौर पर रुकू का हुक्म दिया गया। इस आयत के जरिए से ये हिदायत की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। ये रिवायत तफसीरुल कुरान की है। सफ़तुत तफसीर में है कि इसका मतलब ये कि जमात के साथ नमाज अदा करो या असहाबे मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ो। इब्न जरीर कहते हैं कि इस आयत में उलमाए बनी इसराइल और बनी इसराइल के मुनाफिकीन को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। यानी पूरी हयात में अपने रब की बात को अपने आगे रखें, अल्लाह ताला की इताअत करें अपनी खानदानी जिंदगी में, अपनी मौशरती जिंदगी में, अपनी मौशी और सियासी जिंदगी में भी।
इस आयत से बाजमात नमाज के वजूब पर इस्तेदलाल किया जाता है। कोई सवाल करता है कि बाजमात नमाज का हुक्म अल्लाह ताला की किताब में कहाँ आया, तो वो ये आयत है, वर्कऊ मार्राकिईन अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो? तो क्या तुम समझते नहीं हो? बहुत ही अहम आयत है। बनी इस्राइल में ये रवैया रवाज पा गया था। उनके उलमा ये समझते थे, इल्म वाले, कि ये सारी हिदायत जो अल्लाह ताला की जानिब से आई हैं वो आम लोगों के लिए, खुद अमल नहीं करते थे। बेअमल आलिम अपने लिए भी खतरा है और अपनी उम्मत के लिए भी खतरा है, अपने मुआशरे के अफराद के लिए भी खतरा है। यहूद की मजम्मत की गई, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो? तो क्या तुम समझते नहीं? लोगों को नेकी की बात बताना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सवाब है कि लोगों को नेकी का हुक्म दिया जाए। लेकिन किसी नेकी का हुक्म देने वाले को ये कब से देता है कि वो दूसरों को तो नेकी का हुक्म दे और अपने आप को भूल जाए? कितनी अजीब बात है कि कोई किताब का इल्म रखता हो, वो जानता हो कि अल्लाह ताला की किताब में क्या लिखा है, वो ये जानता हो कि अल्लाह के हुक्म में किसी किस्म की कमी की तो अल्लाह ताला की जानिब से कितनी बड़ी पकड़ होगी, फिर भी अपने आप को बचा लेता है। खुद फरेबी है ना। मैं समझती हूँ कि इसको अगर थोड़ा अपने माहौल में रख के देखा जाए, समझना आसान हो जाएगा। जब तक लोग तालीम हासिल करते हैं, और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो कुरान पढ़ लेता है उसके अंदर एक अजीब तब्दीली आ जाती है। शैतान का धोखा जो इल्म रखने वालों के लिए है, वो तसल्ली देता है कि अब तुम्हें इस इल्म के बाद किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई, तुम तो असल काम कर चुके हो, तुमने तो इल्म हासिल किया, तुम्हारे पास तो इल्म है, इल्म की वजह से लाइल्म लोगों से तुम बहुत बेहतर हो। वो कुरान हकीम की आयत के हवाले के तौर पर ज़हन में लेके आता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? तो उसे लगता है कि मैं तो अपने इल्म की वजह से दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं तो उनसे बहुत बेहतर हूँ। वो इस बात पर शुक्र भी अदा करता है कि मेरे पास इल्म है, और वो इस बात पर भूल भी जाता है कि मेरे पास इल्म है। लिहाजा कभी आप देखना चाहें, आप ऐसे फ्रॉड को देख भी सकते हैं, और कभी अल्लाह ताला किसी पर ऐसा वक्त लेकर ना आए, लेकिन अपने बारे में अल्लाह ताला से बहुत दुआ कीजिए, क्योंकि खतरा बहुत है। जो शख्स अपने आप को साहिब इल्म समझता है, वो किसी इल्म की बात को सुनना ही नहीं चाहता, लिस्ट इंटरेस्टेड होता है। इल्म की बात के बारे में जो तब्दीली किसी इंसान के अंदर आनी चाहिए वो खुशू है,
झुकाव। अगर किसी का दिल अल्लाह ताला के आगे नहीं झुकता तो अजीब तब्दीली आती है, लोग सुनी अनसुनी कर देते। एक दफा इल्म हासिल करने के बाद वो इल्म उतना ही जरूरी रहता है, उतना ही नागजीर रहता है, उतना ही उस इल्म को तवज्जो देने की जरूरत होती है। बेतवज्जी जिस वक्त हुई, जब भी किसी लफ्ज के लिए, किसी आयत के लिए, किसी इल्मी गुफ्तगू के लिए जो शख्स भी बेतवज्जही बरतेगा, इब्लीस उसके अंदर अपना मोर्चा कायम कर लेगा। और इब्लीस का मोर्चा अजीब होता है कि फिर वो इंसान को तकब्बुर से निकालता ही नहीं है, निकलने नहीं देता। मैंने आपको मिसाल सुनाई थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, कि इब्लीस उनके पास आया, कहने लगा तुमने इतनी नमाजें पढ़ी, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने सोचा अंबिया सॉलिहीन किसी के लिए नमाजें खत्म नहीं की गई, मैं नमाज से बड़ी जिम्मा कैसे हो सकता हूँ। इब्लीस ने अगला वार किया, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। ये वो मकाम है जहां कोई शख्स पहुंचता है और आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे इल्म नहीं बचा सकता। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने, मेरे रब की रहमत ने बचाया। तो रब की रहमत तो कुरान की तालीम के साथ अपने अंदर झांक के देखिए, कुरान हकीम को तवज्जो देने के लिए कौन सी चीज आमादा नहीं होने देती। एक बार सीखने के बाद कितने ही लोग हैं जिनके रवैये बदल जाते हैं। अब सबसे बुरा रवैया ये है कि देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 अफराद आए थे इल्म की मजलिस में। एक शख्स आगे आ गया तो उसको आगे जगह मिल गई, एक पीछे रह गया कि आगे जगह नहीं है तो पीछे जगह मिल गई। एक ने कहा अब तो जगह खत्म है, वो वापस चला गया। तो इल्म के मजालिस में आने वाले याद रखिएगा 3 तरह के होते हैं, बैंक बेंचर्स होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई पीछे बैठकर तवज्जो नहीं दे सकता, लेकिन मैग्नेटिक सर्कल को देखते हैं। मैग्नेटिक सर्कल में जो क्लोजर सर्कल होता है ना, उसके अंदर कशिश ज्यादा होती है मैग्नेट के साथ जुड़ जाने की, और ये सर्कल जितना बड़ा होता चला जाता है, आउटर सर्कल में तकरीबन ना होने के बराबर कशिश रह जाती है। इल्म के साथ ताल्लुक इल्म वालों के साथ ताल्लुक से बनता है, और ये ताल्लुक क्या होता है? बात को गौर से सुनना, ये पहला ताल्लुक है। तवज्जो के साथ सुनना और खामोश रहना। आप मुझे खुद बताइए, पीछे बैठ के थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती? जब पीछे बैठते हैं तो बात करने का मौका पाकर बात कर सकता है कोई भी। क्यों? मैग्नेटिक सर्कल की सूरत हाल हमेशा ऐसे होती है।